नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट डिसेप्शन, ओके, एंड द चीफ डिसीवर इज इब्लीस, इज शैतान, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशल टॉपिक। इतने कम टाइम में ये पूरा टॉपिक कवर करना बहुत मुश्किल काम है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू स्टे अवेक, राइट। It's very interesting and very fascinating, and I want you to participate fully, okay, so that we can get the maximum out of it. It will have actually two sessions. The one session is about the jinn, and the other session is about how it is going to influence us, या जिन्नात कौन होते हैं और वो कैसे influence करते हैं. So the session one is about jinnat. So the word jinn comes from the root word jineen, which means something that is invisible. ऐसी कोई चीज जो invisible हो, that is the root word of word jinn. And from the same root word we derive a word jineen, that means fetus, क्योंकि जो बेबी होते हैं मदर की वॉर्म के अंदर, that is invisible. From the same word comes the word jannat and jahannam. Both of them means invisible. We haven't seen the hellfire and we haven't seen the paradise. और आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं, most of them don't believe in jinn. They say that, what is jinn? ये सब बकवास है. It's an ancient story. Before the bacteria and discovery of bacteria and other things, we would say कि jinn चिमट गया, but there's nothing like that. There's no concept of jinn in human history, because जो physics है, physics says that there's nothing such as jinn, क्योंकि वो में नजर नहीं आते. Okay, so because we cannot say, because we cannot find them, because we cannot see them, तो इसलिए जो jinn है उनकी reality है ही नहीं. और अगर आप एंशियंट अरब्स की हिस्ट्री देखें, बिफोर इस्लाम दे वुड बिलीव इन जिन. जो अरब्स होते थे वो भी जिन्नों को बिलीव करते थे. एंड इन कुरान, इन वन ऑफ द प्लेसेस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोट्स देम, अरब्स को कोट करते हैं कि जो पैगन्स हैं वो ये कहते हैं कि जो जिन है वो अल्लाह के पार्टनर है वर्शिप में, लेकिन जिनों को भी पता है कि वो अल्लाह के आगे अकाउंटेबल है. तो जो पैगन्स थे इस्लाम से पहले, जो अरब्स थे, वो भी जिनों पे बिलीव करते थे. Judaism में some of the Jews they believe in jinns and some of them reject in jinns. वो reject करते हैं. However, in Islam and in Christianity they have a concept of demons, okay, or demons, right? They have this concept that the shaitan, iblis, उसकी एक पूरी फौज है जो against act कर रही है humanity के, man के, humans के against act कर रही है. और जिस तरह हमारी एक फौज है उस तरह उनकी भी एक फौज है, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ बैटल बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो वी हैव दिस कांसेप्ट इन क्रिश्चियनिटी. सम ऑफ द मॉडर्निस्ट लाइक फिजिस्ट दे से दैट देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ जिन, लेकिन इन इस्लाम इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर अस टू बिलीव इन जिन. ओके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज कोटेड जिन और रेफर्ड टू जिन in no less than 40 different ayats. In 40 different verses अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनों का रेफरेंस दिए. एंड वी नो दैट द चीफ ऑफ देम, ऑफ द इवल जिन, वो कौन है? वो इब्लीस है. उसके बारे में भी आते हैं. इवन कुरान में एक सूरा पूरी जिनों के नाम पर है, दैट इज कॉल्ड सूरत अल जिन. एंड देयर इज अ वर्स कुल ऊहिया इलैया इन्नहु समा नफरुम मिनल जिन्नी फक़ालू इन्ना समीना कुरानन अजबा, that say, O Muhammad, it has been revealed to me that a group of jinn listened and they said, indeed we have heard an amazing Quran. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions the incident that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was reciting Quran and a group of jinns which were from 3 to 10, इतने jinns थे, उन्होंने कुरान सुना और उन्होंने कहा कि फ़क़ालू, बेशक हमने सुना है कुरान अजबा, बहुत ही अजीब कुरान. ओके, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कुरान. सो अजबा is not something that is bad or something that is strange in Arabic language. Ajaba is something that is unique. So Quran was very unique. Okay, and this was something that they heard which was very, very unique.
तो जिनों पे बिलीव करना, it's a part of our creed. Because we can't see jinn, that doesn't mean कि जिन exist ही नहीं करते. It's a part of our creed. सूरत अल-बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो लोग जो बिल गैब पे ईमान लाएं, something that is unseen. तो जिस तरह एंजल्स पे ईमान रखना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ईमान रखना हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है, इस तरह जिनों पे भी ईमान रखना ऑब्लिगेटरी है. और आगे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि what are the limitations, what is their livelihood, how do they live. So it's a very interesting topic. So there are three type of jinns. The first type of the jinn, the Messenger of Allah said that jinn are of three types. The first type have wings and they fly through, okay, the air. The second looks like snake and dogs, and the third type stop for a rest and then resume their journey. So there are three type of jinns. The first one are those who fly. और सूरत अल-मुल्क में हमने पढ़ा था that stars have different purposes. What were the purposes of star? For decoration. Okay. So ये क्या होता है कि जो जिन जाते हैं वो आसमानों की तरफ जाते हैं, and these are those jinns that can fly. One of the type of jinn is Ifrit. Okay, Ifrit is one of the type of jinn that is very strong and that can travel from one place to another place. और ये जब ऊपर जाते हैं तो इन्हें स्टार्स से मेटियोर्स मारे जाते हैं because they want to go up and they want to listen whatever they are going to say. जो फरिश्ते आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो सुनना चाहते हैं कि क्या कम्युनिकेशन जा रही है, तो मेटियोर्स निकलते हैं और वो जिनों पे जाके लगते हैं. उस पे कुछ जख्मी हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं. तो हमें पता चलता है that one of the type of the jinns are those who go to the seven heavens, say on the heaven of the earth, और वहां पे जाके वो एंजल्स की कम्युनिकेशन सुनते हैं और वो नीचे लेकर आते हैं, उसमें काफी ज्यादा फैब्रिकेट करते हैं और अपने बाकी जिनों को बताते हैं. They try to say that we have brought the future, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि no one knows the future. So one is that type. The other type of jinn are those who are snakes and dogs. We are going to study about it. When the Messenger of Allah came to Medina, he ordered everyone that you are not supposed to kill a snake or a dog except for you ask them, या आप उन्हें 3 दफा कहें that if you are a jinn you leave this place. अगर वो ना leave place करें then you are about to kill them, you are allowed to kill them. अगर वो वाली जगह ना करें leave, then you can only say. So for instance, if we have a snake in our house, you are supposed to say it might be a jinn. तो अगर यहाँ से कोई सांप अंदर आ जाए, rather than just bringing a gun from your father's wardrobe और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दो, you tell them that if you are a pure jinn, if you are a good jinn, then you have about to leave. तो एक रवायत आती है from a young Ansari, उन्होंने कहा when the Messenger of Allah came to Medina, तो मदीना में बहुत ज़्यादा डॉग्स थे और बहुत ज़्यादा स्नेक्स थे. तो मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने हमें ऑर्डर किया कि आपने इन जिनों को कहना है, द स्नेक्स एंड द डॉग्स, इन्हें कहना है स्पेशली द ब्लैक डॉग, इन्हें कहना है कि इफ़ यू आर अ बिलीविंग जिन, इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू लीव दिस एरिया, आप इस एरिया को छोड़ दें. और अगर वो ना छोड़ें 3 दफ़ा कहने के बावजूद, तो आपने फिर उन्हें मारना है. ओके, दिस वाज एन ऑब्लिगेशन ऑन देम. और जो ब्लैक डॉग है उसके बारे में तो एक हदीस क्लियर करते हैं दैट शैतान अडॉप्ट्स द शेप ऑफ अ ब्लैक डॉग. तो जो जिन होते हैं, दे हैव लंग्स, दे हैव हार्ट, दे हैव टंग, दे ईट फूड, दे हैव एवरीथिंग, बट देयर फॉर्म इज डिफरेंट. डिफरेंट जिनों की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड आर दोज हु ट्रेवल ऑन द अर्थ. वो ट्रेवल करते हैं, वो रिज्यूम करते हैं और उसके बाद वो दोबारा ट्रेवलिंग शुरू कर देते हैं. सो दे आर दोज जिन्स हु गो फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू नाइजीरिया एंड देन टू सिंगापुर एंड देन टू इटली. ओके, दे आर जस्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एंड देन दे कम टू पाकिस्तान. दे लिव इन डेजर्ट्स. सो दे आर डिफरेंट थिंग्स. सो लाइफ ऑफ अ जिन. सो लाइक आई टोल्ड यू कि वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो सब कुछ करते हैं. व्हाट इज ए डाइट? वो क्या करते हैं? Is there someone who knows उनकी डाइट क्या है? Bones. Very good. Okay, so their diet is bones. Actually, it's a hadith of Sahih Muslim that the Messenger of Allah said that I was
someone from a delegation of jinn came to me. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जिन मिलने आया, एक डेलीगेशन आई जिन की, एंड वी वर वॉकिंग बाय, हम आपस में वॉक कर रहे थे, एंड ही आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस, एंड वन ऑफ द क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज दैट व्हाट शुड वी ईट, हमें क्या खाना चाहिए, बिकॉज यू नो ह्यूमंस भी रह रहे हैं दुनिया में और जिन भी रह रहे हैं, सो ऑब्वियसली इफ दे आर गोइंग टू ईट KFC, मैकडॉनल्ड्स और सब कुछ, तो इट्स गोइंग टू बी शॉर्टेज फॉर अस, हमारे लिए तो शॉर्टेज हो जाएगी. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यू कैन ईट द बोन्स, ओके, आप बोन्स वो खाएं, और जिन्होंने कहा कि हम बोन्स खाएंगे एंड योर एनिमल्स, क्योंकि उनके एनिमल्स भी होते हैं जिस पे वो ट्रेवल करते हैं, देयर डाइट इज द डंग ऑफ अ कैमल, ओके, जो कैमल का वेस्ट मटेरियल होता है दैट इज देयर डाइट फॉर देयर एनिमल्स, ओके, उनके एनिमल्स की जो डाइट होती है वो कैमल का वेस्ट मटेरियल होता है और उनका होता है ये. सेकेंडली, they are believing jinns and there are some of the jinns that are kuffar, वो जो काफिर जिन्स हैं जिनमें शैतान भी आते हैं, इब्लीस भी जो चीफ कुफार है, कमांडर इन चीफ है कुफार का, वो भी आते हैं. तो the believing jinns, they eat everything that is sacrificed with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. जो भी चीज़ अल्लाह subhanahu wa ta'ala के नाम से सेक्रीफाइस होती है, बिलीविंग जिन क्या करता है, वो वाली चीज़ें खाते हैं जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान हुई होती है, और जो कुफार जिन होते हैं वो वाली चीज़ें खाते हैं जो गैर अल्लाह के नाम पे कुर्बान हुई होती है. इसलिए जब आप जाएं किसी जादूगर के पास जादू करवाने, तो आपको कहते हैं कि वाली फलानी चीज़ उसके नाम पे, किसी और बंदे के नाम पे सेक्रीफाइस करवाएं, तो आपसे चीज़ें मंगवाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कैमल की रान चाहिए कहीं से, या काऊ की रान चाहिए. दे आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैजिशियंस जो आपसे चीज़ें मंगवाते हैं, या वो कहते हैं कि बच्चा ज़िबा करके लेकर आओ, उसका जो ब्लड है वो जिनों को पिलाते हैं. सो बहुत ज़्यादा खबीस जिन भी होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे जिन भी होते हैं, ये दोनों होते हैं. तो जो खबीस जिन होते हैं, जो बुरे जिन होते हैं, वो लेफ़्ट हैंड से खाते हैं और लेफ़्ट हैंड से पीते हैं. और एक हदीस के मुताबिक एक आफद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व्हेनेवर यू एंटर योर होम, जब अपने घर को एंटर हो तो से बिस्मिल्लाह, आप बिस्मिल्लाह करके एंटर हो. फॉर वेरीली, वो जो चीफ उनका होता है वो उन्हें कहता है कि आज इस बंदे ने बिस्मिल्लाह करके एंटर हुआ है, तो वी कैन नॉट स्पेंड आवर नाइट ओवर हेयर, हमारी अब रात यहाँ पे नहीं होगी, और हम इनके मील में से कोई मील भी नहीं खा सकते. अगर आपने बिस्मिल्लाह एंटर पढ़ के एंटर हुए हो घर में, तो चीफ उन्हें कहते हैं कि आज तो हमें रात को कहीं और जाके रहना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता, इनके AC नहीं यूज़ कर सकते हैं, और ना ही इनका हम मील खा सकते हैं. और अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के एंटर ना हो, अगर आप बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े एंटर हो, तो चीफ बहुत खुश होता है, वो कहते हैं हाँ आज 5 स्टार होम में हमें एक रात मिल गई है और हम इनका मील भी खा सकते हैं. सो दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और उनकी फैमिलीज भी हैं, उनकी बीवियां भी हैं और उनके बच्चे भी हैं, जस्ट लाइक अस. So they have their families, they have their wife, they have their children. Even शैतान की भी पूरी progeny है, like जितने भी शयातीन हैं उनकी पूरी आर्मी है. So what are the places that they live in? What are the places that these jinnat live in? Very very interesting. And इसमें से कुछ चीज़ें तो मैंने eliminate कर दी हैं because it's very scary. So some of the things are very scary because it happens in our house every day. Places of impurity, बता देता हूँ इंशाल्लाह. ओके, places of impurity like dumpsters, जहाँ पे rubbish या garbage पड़ा हो, excretion हुई हो, इस तरह के सारी places. And one place in our house is washroom. Okay, so these jinns, they live in the washroom of every person's house, and that's a fact because they live in the places like washrooms. And that is why one of the companions said that the Messenger of Allah would advise us to recite a dua before going to the washroom. आप washroom जाने से पहले एक दुआ recite करें, वो दुआ सारों को आती है. Most of you know that दुआ, लेकिन उसका translation नहीं आता होगा. अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस. क्या मतलब? कि अल्लाह ताला मैं पनाह मांगता हूँ जी खबीस जिनों से और खबीस जिनियों से. ओके, व्हाटएवर द फीमेल वर्जन ऑफ जिन इज. ओके, तो
ये वॉशरूम्स में होते हैं, और स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर एक बंदा वॉशरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को प्रेफर करे, एक बंदा होता है वॉशरूम जाता है और जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है आ जाता है, ओके, नॉट दैट केस, ओके, अ पर्सन लाइक्स टू स्पेंड मोर टाइम इन वॉशरूम, वॉशरूम में जाके शायद नहाते हुए गाने गा रहे हैं बहुत ज़्यादा, या कुछ और करे, ही लव्स टू स्पेंड टाइम इन वॉशरूम, तो वन ऑफ द इंडिकेशन इज दैट मे बी he is afflicted by magic. Okay, maybe not that every person who is spending time in washroom, आपको यार पता चल गया, लिटमस टेस्ट मिल गया था क्लास में उस दिन, इसमें तो जादू हुआ है, देखो आधा घंटा हो गया अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं निकला, जादू हुआ है, इस तरह नहीं. Among some of the tests are, one of the tests is that a person goes to the washroom और वॉशरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करे. Okay, this is one of the tests. उसके बाद देयर आर सेवरल मोर टेस्ट. एक स्कॉलर है इधर लाहौर के ही, वो रुकिया करते हैं, यानी कि जिसको जिन चिमट जाए, पोजेस्ट हो जाए जिन से, उसको जिन बाहर निकालते हैं. तो उन्होंने कहा कि मैं एक मदरसे गया तो काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ कि इस मदरसे के एक बच्चे के अंदर जिन चला गया. वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि बच्चे की रूटीन क्या है. जब बच्चे की रूटीन देखी तो ना ही मदरसे में वो गाने सुनता, ना ही कोई और काम करता, ना ही वो मूवीज़ देखता, सारा दिन कुरान की तिलावत होती, मदरसे में ही रहता. तो जब उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया और ज़्यादा रिसर्च की उस मैटर के अंदर, तो पता चला कि जो मस्जिद के वॉशरूम्स है, क्योंकि वो मस्जिद का पार्ट नहीं होते, मस्जिद से बाहर होते हैं, वो वहाँ पे जाते हुए दुआ ना पढ़ता, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस. और उस मोमेंट पे जब वो वॉशरूम जाता और वो दुआ ना पढ़ता, उस मोमेंट पे वो जिन उसके अंदर चला गया. ये इतना क्रिटिकल है, यानी कि ये जो दुआ पढ़नी है ये इतनी क्रिटिकल है कि वो जो मस्जिद का बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे माहौल में रहता, 24/7 अच्छे माहौल में तिलावत होती, वो जब वॉशरूम जाता, वो वॉशरूम जाने की दुआ ना पड़ता, तो उसके अंदर जिन चला गया. और इसी तरह जिनों की पोजीशन अक्सर तब भी होती है जब बंदा गुस्से में आए. जब बंदा गुस्से में आता है तो बंदा ह्यूमन शील्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और तब जिन उसके अंदर चला जाता है, द स्टेट ऑफ एंगर. इसलिए जब बंदा गुस्से में आता है उसको ताउज़ पढ़ना चाहिए, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. ओके, द सेकंड प्लेस इज दे लाइक टू लिव इन मार्केट्स. जहाँ पे मार्केट्स होती हैं, बाजार होते हैं, अक्सर कुछ अहादीस में मिलती हैं दैट यू नो मार्केट्स आर प्लेसेस ऑफ डेविल. क्यों? जब हम मार्केट्स आते हैं, बहुत ही शरीफ बच्चा होगा लेकिन मार्केट जाएगा तो लड़कियों को देखना शुरू हो जाएगा. ओके, विस्पर्स ऑफ जिन क्या करते हैं? विस्पर करते हैं. और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स होते हैं लेकिन जब उनके सामने कोई क्लाइंट आता है तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं. फोर्स नहीं करता जिन, लेकिन वो विस्पर करता रहता है. सो सम ऑफ द प्लेसेस इन विच दे लिव आर द वॉशरूम्स. ओके, नाउ अब हमारी स्टेट क्या होती है दैट द प्लेस वेयर वी आर नॉट सपोज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, जहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना, वो हमने बहुत ज़्यादा VIP कर दी. ओके, टू एन एक्सटेंट दैट इट हैज़ पेंटिंग्स, इट हैज़ अ TV इन इट, इट हैज़ this phone extension phone. Okay, if you go to 5-star hotels, very nice washrooms, okay, that you they're so clean that you really want to spend a lot of time, but rather it's a time where you should not be spending. Okay, and similarly it's not recommended in Islam to spend a lot of time nude. ठीक है, बहुत ज़्यादा nude रहना, a lot of time, okay, just like sleeping nude, okay, without saying Bismillah or A'udhu Billah or anything. It's like inviting jinn. या impurity के state में रहना. Okay, like a person is obligatory to do ghusl, उसको ghusl करना obligatory हो गया, but he's delaying it. कि सुबह को obligatory हुआ है, he's not offering any prayers in between, और वो कल जाके नेक्स्ट मॉर्निंग जाके गुस्ल करे. ओके, सो स्टफ लाइक दैट, वो अपनी जो शील्ड होती है उसको वीक कर देता है, ह्यूमन शील्ड को वीक कर देता है, और जिनों का इन्फ्लुएंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है.
Similarly, places in which jinns live are graveyards. Graveyard में जाके ये वो वाले places that are empty for ages, or some of the rooms in your house that are empty rooms. इसलिए कहते हैं कि extra rooms नहीं होने चाहिए किसी के घर में, because they might be influence of jinnat. So graveyards. So that's why it's recommended कि जब आप graveyard में जाओ अपनी पूरी दुआएं पढ़ के graveyard में enter हो, because it's also a place where they live. Okay. And in the places of camels, जहाँ पे camels बांधे जाते हैं, in the trails of camels, they live. There are the places in which the camels live. Or some of them say that jinns and the iblis and camels, they have a relation. So camels को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए. Okay, जो जिस तरह के हैं उनके साथ वैसे ही रखो. The more you try to involve with them, the more they are going to get influenced. यानी कि psychologically camels are more reactive. आप उनके साथ जितनी दोस्ती करना चाहो उतना वो आपके against होते हैं. Okay, so they are not of that nature. But similarly, there is मुतवादिर रवायत है कि जो जिन्स हैं वो मुस्लिम जो जिन्स हैं वो रिजाइड करते हैं सीलिंग्स के मुस्लिम होम्स के. जो मुसलमानों के घर हैं उनकी जो सीलिंग्स होती हैं, ये जो छत है हमारी, यहाँ पे भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी जिन सुन रहे हो हमें. ओके, कि हम उनके बारे में बातें करें. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी. और अक्सर लोगों ने कहा हुआ है कि हमारे पिछले घर में जिन्नात रहते थे. तो मैंने कल एक स्टोरी सुनाई इनफॉर्मल गैदरिंग कि मेरे एक स्टूडेंट है, वो आया है गुलशन रावी से. गुलशन रावी में मैंने पता नहीं क्या है कि अक्सर मैंने देखा है कोई ना कोई जिनों का एरिया होता है, नाले की भी साथ है तो शायद. ओके, तो वो कहते हैं कि हमारे पिछले घर में जिन रहा करते थे और हमें उनका पता था और उन्हें हमारा पता था. यानी कि इस तरह नहीं था कि वो छुप के रह रहे, वो बिल्कुल ओपनली रहते थे और इन्फ्लुएंस करते रहते थे. यानी कि आपने प्लेट इधर रखी है, कोई प्लेट हिराने वाला नहीं, लेकिन जिन्होंने प्लेट किसी और जगह रख दी है, या वॉशरूम गए तो वॉशरूम में आके तंग करना थोड़ा सा. ओके, तो इस तरह तंग करते थे और वो कहते थे कि आप दिए जलाए रखो. उनके घर में ट्रेडिशनली पुराने घरों में दिए वो जलाते थे, काफ़ी उनका ट्रेडिशन था. तो उसने मुझे पर्सनली बताया कि एक दफ़ा मेरे अबू ने उनके दिए बंद कर दिए तो उन्होंने रख के मेरे अबू को चपेट मारी. ओके, तो इस तरह भी होता है. और यहाँ पे एक स्कूल भी है, it's in Izmir town, but I'm not going to name the school. Okay, so a lot of people who already know it. It's in Izmir town. वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड मैनेजमेंट में था. उसने कहा कि एक दफ़ा मैं 6 बजे बैठा हुआ था यहाँ पे, तो दरवाज़ा बगैर किसी विंड के बंद हो रहा और ओपन हो रहा, जस्ट लाइक पटाख पटाख दरवाजे का हो रहा. और सारे डर गए, गार्ड भी डर गए. गार्ड भागे आए कि क्या हो रहा है. तो गार्ड्स को भी अक्सर जिन्हों की एसेंस फील होती थी. जिस तरह हमें विंड तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन हमें विंड की एसेंस फील होती है कि देयर समथिंग कॉल्ड इज विंड. वी कांट सी विंड, लेकिन उनकी एक एसेंस फील होती थी. सो दिस इज़ अ रियलिटी. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोटेक्ट करते हैं आपको और आपके घर को फ्रॉम दीज जिन्स. ये जो खबीस जिन होते हैं इनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोटेक्ट करते हैं. अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंजल्स के थ्रू आपको प्रोटेक्ट ना करते तो दे वुडंट हैव लेट यू ईट. वो आपको कुछ खाने ना देते, दे वुडंट हैव लेट यू ड्रिंक समथिंग. वो ना ही कुछ पीने देते. एंड दे वुड हैव रिमूव्ड योर ऑरा. जो आपकी कवरिंग है, जो आपकी गारमेंट्स हैं, वो रिमूव करते हैं. एक और सही हदीस में आते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1,60,000 एंजल्स अपॉइंट किए हुए हैं हर ह्यूमन के ऊपर. कितने एंजल्स जी? अ बिलीविंग ह्यूमन, नॉट अ माइकल जैक्सन काइंड ऑफ अ पर्सन, अ बिलीविंग ह्यूमन, अ राइचियस पर्सन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अब्द है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बंदा है, उस पे 1,60,000 सही मुस्लिम की हदीस है, आई थिंक, एंजल्स अपॉइंट किए हुए. और उनमें से 7 एंजल्स उसकी आई प्रोटेक्ट करते हैं. जो हमारी आईज हैं 7 वो प्रोटेक्ट करते हैं. जस्ट लाइक समवन इज प्रोटेक्टिंग
जार ऑफ हनी फ्रॉम बीज, जिस तरह हमारे सामने हनी का एक जार पड़ा हो और हम बीज से उसको प्रोटेक्ट करें कि इसके ऊपर हनी जो कोई नॉर्मल बी ना आए, बिकॉज इट्स वेरी स्वीट। तो इसी तरह एंजल्स हमारी हिफाजत करते हैं। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म। एंजल्स आर देयर टू प्रोटेक्ट अस, दे प्रोटेक्ट एवरीथिंग। और अगर ऐसा ना होता तो शायद अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें प्रोटेक्ट ना करें, हमें अपने ऊपर ही रहने दें कि हम अपनी प्रोटेक्शन खुद करें, वो जिस तरह हमें हार्म कर सकते थे कर लेते। सो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। कैन दे मैरी ह्यूमंस और नॉट? ओके, आई हैव ब्रॉट दिस टॉपिक बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग कि जिनों की और इंसानों की शादी हो सकती है या नहीं। सो व्हाट डू यू थिंक? इसमें स्कॉलर्स के डिफरेंट कोट्स मिलते हैं। ये नहीं है कि नहीं कर सकते और ये भी नहीं है कि कर सकते हैं, वी कांट से एनीथिंग, लेकिन स्कॉलर्स के डिफरेंट कोट्स मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू इब्न तैमिया ये परमिसिबल है, जिनों की और इंसानों की शादी होना, दिस इज़ परमिसिबल। और वो कहते हैं कि ये इसके बारे में दिस इज एविडेंस फॉर इट कि परमिसिबल है और स्टोरीज हैं। इसी तरह इमाम सयूती भी यही कहते हैं कि दिस इज़ परमिसिबल। Some of the scholars say that only that is permissible कि अगर ह्यूमन मेल हो और जिन जो है वो फीमेल हो, only this is possible. With the male human, a female jinn can marry, not vice versa. ये नहीं हो सकता कि जिन मेल हो और जो ह्यूमन है वो फीमेल हो, this is not possible. लेकिन बाकी अक्सर उलमा ये कहते हैं कि no, this is not permissible based on the verse of the Quran, wallahu ja'ala lakumul min anfusikum azwaja. It's in Surah Al-Nahl that Allah subhanahu wa ta'ala has created zawja, your partner, from within you. Okay, wallahu ja'ala lakum, Allah subhanahu wa ta'ala ने बनाया lakum, तुम्हारे में से, min anfusikum, तुम्हारे नफ्सों में से, azwaja, तुम्हारी पार्टनर। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दिस वर्स वो कहते हैं कि नहीं, इट्स नॉट परमिसिबल। बट वट एवर सिनेरियो इज, आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि एक ह्यूमन एक जिन्नी से शादी की हो। आई हैव नेवर मेट समवन जिसकी शादी हुई हो। न्यूज़ नहीं, लाइक रियल टाइम एक्सपीरियंस। बिकॉज हाउ मेनी ऑफ वी आर सिटिंग ओवर हियर? ऑलमोस्ट 20. ओके, सो इवन इफ वी नो 100 people, right? If we know, each one of us know 100 people in our life generally. So what is the amount of people that we know? 2,000. Okay, so 2,000 people I've never seen someone getting married. अगर ये लार्ज स्केल पे भी हो, वल्लाहु आलम। ओके, वी डोंट नो। लेकिन ये ज़रूर आता है कि अक्सर लोगों ने ये देखा हुआ है दैट एक उलमा से कुछ जिन पढ़ने आए हुए हों या उलमा की गैदरिंग्स में जिन नॉलेज सीख कर रहे हों, और एक इवेंट मिलता है मदीना यूनिवर्सिटी का। इट्स अ वेरी फेमस इवेंट। लॉन्ग टाइम बिफोर, जब इब्न बास ज़िंदा थे और वो डीन थे मदीना यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे हॉस्टल में बच्चों का आर्गूमेंट चल रहा था, लड़कों का। काफ़ी रात हो गई थी और आर्गूमेंट ये चल रहा था कि लाइट किसने ऑफ करनी है। आर्गूमेंट चल रहा है कि लाइट किसने ऑफ करनी है। जिस तरह आप थके हुए हो और आपके हॉस्टल में बाकी भी रूममेट्स हैं, 4 रूममेट्स हैं, और आर्गूमेंट हो रहे कि नहीं यार तुमने ऑफ करनी है, वो कह रहे नहीं तुमने ऑफ करनी है, मैंने नहीं ऑफ करनी, मैंने तो कल ऑफ की थी, हर दफ़ा मुझे कहते हो ऑफ करने के लिए। तो एक आर्गूमेंट चल रहा था कि लाइट किसने ऑफ करनी है। और वहाँ का एक स्टूडेंट था जो उन्हीं में से था, उनका रूममेट था, उसको एकदम गुस्सा चढ़ा बहुत ज़्यादा, और वो बैठे बैठे, वो लेटा हुआ था, उसने अपना हाथ एक्सटेंड किया और उसका हाथ वहाँ से लेके स्विच बोर्ड तक गया और उसने लाइट ऑफ कर दी। ठीक है, वो फेडअप हो गया उस आर्गूमेंट से, और जितने भी बाकी रूममेट से वो भाग। ठीक है, जो भी सिनेरियो होगा कि ये कैसे हो गया, वो सारे भाग गए। नेक्स्ट डे इब्ने बास ने उस बच्चे को बुलाया जिसका हाथ एक्सटेंड हुआ था, क्योंकि बहुत पॉपुलर इवेंट है मदीना यूनिवर्सिटी का, और उन्होंने पूछा कि तुम जिन हो? तो उसने कॉन्फेस किया कि हाँ मैं जिन हूँ, मैं काफ़ी देर से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ इंसानों के लिए, जिनों के लिए नहीं है, तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद वो चला गया जिन। ठीक, तो ओरिजिनल फॉर्म में मैं उन्हें नहीं देख सकता। नहीं, इनमें से काफ़ी कुफार होते हैं और काफ़ी नहीं होते।
मुस्लिम जिन्स काफ़ी ओबीडियंट होते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहरहाल जिनों की लिमिटेशन रखी है और इंसान बहरहाल जिनों से बेहतर है। एक जो जिन होता है उसका जो इंटेलेक्ट होता है वो किसी भी 12-13 साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं होता। ओके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत इसरा में कहा वलक़द कररमना बनी आदम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी आदम को एक ऑनर दिया और वो ऑनर स्टेटस का ऑनर है। तो एक ओबीडियंट इंसान बेहतर होता है किसी भी ज़्यादा ओबीडियंट जिन से। अगर आप जिनों को देखें और इंसानों को देखें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनों को भी उसी तरह पैदा किया है जिस तरह इंसानों को पैदा किया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है सूरह दारियात में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनों को और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत कर सकें। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ जिन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू हेड टूवर्ड्स सेशन 2 about their influence, but before that there are some questions. The question is that what should you say when you enter home? Bismillah. Why is it important to recite dua before entering washroom? Protection ke liye. Okay, how many type of jinns are there? 3. What are those 3 types? Okay. Oh. The one who only do January. Very good. Okay, any other questions? Do you have any questions? हर डॉग जिन नहीं होता, लेकिन हर डॉग जिन नहीं हो सकता, लेकिन डॉग्स में से कुछ जिन हो सकता है। ओके, यू अंडरस्टैंड? ओके, सो एवरी डॉग इज नॉट अ जिन, लेकिन डॉग्स में से कुछ जिन हो सकते हैं। स्पेशली जो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है उसके बारे में हदीस आती है दैट रियली इट्स शैतान, तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने डॉग हंटिंग रीजन से या किसी और रीजन से रखना भी है तो ब्लैक डॉग नहीं रखना चाहिए। इफ्रीत दे आर डिफरेंट जिन्स, एक पूरी लिस्ट है 7 to 8 जिन्स। तो अरब पोइट्री में या लिटरेचर में डिफरेंट जिनों के डिफरेंट नाम थे। आई विल सेंड यू दैट लिस्ट which I haven't mentioned over here. लेकिन इफ्रीत is one of the strong jinns जो जाके fly करता है, is very strong. We are going to study about it. और सूरह नमल में भी आता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्सा है, वो मैं आगे आपको सेशन 2 में बताऊंगा। So session 2 is about their influence. The first thing is that when we hear about jinns, and why are we talking about jinns in the first place, is because of Iblis. Okay, हम जिनों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वी वांट टू नो इबलीस, कि इबलीस कौन था। और इबलीस कौन था? ही वाज अ जिन। हमें सूरत ar-रहमान में मिलता है दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड इबलीस बिफोर अस, बिफोर द क्रिएशन ऑफ आदम थ्रू स्मोकलेस फायर। ओके, स्मोकलेस फायर, फायर दैट इज स्मोकलेस, उससे क्रिएशन ऑफ इबलीस हुई। और एक और जगह पे भी सूरत आराफ में मिलता है कि इबलीस ने क्यों नहीं सजदा किया, क्योंकि उसने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे नार से पैदा किया है और इसको तीन से। ओके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ क्रिएटेड मी फ्रॉम फायर, और इन्हें कहाँ से क्रिएट किया? एक मट से, मिट्टी से पैदा किया है। इसलिए वो एरोगेंस में आ गया और उसका हसद था, तो इसलिए उसने सजदा नहीं किया। तो हम सारी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको हम एंड पे रिलेट करेंगे इबलीस से, कि इबलीस भी जिन है। एंड ऑनेस्टली अनलेस और अनटिल यू नो योर एनिमी, जब तक आपको अपना एनिमी नहीं पता तो यू कांट नो कि उसका इन्फ्लुएंस कैसे होता है, यू डोंट रियली नो। अब सारी जिनों की बातें करने के बाद दे कैन फ्लाई, दे कैन चेंज द शेप, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, दे हैव सम लिमिटेशंस। What are the limitations? Allah subhanahu wa ta'ala सूरत इसरा में कहते हैं that verily my slaves you have no authority over them. जो भी मेरे अब्द है, अब्द मीन्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ट्रू स्लेव, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को फुली सबमिट करे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कहने पे माने, पूरी कमांडमेंट्स माने, उसके ऊपर इबलीस की या किसी भी जिन्नात की कोई अथॉरिटी नहीं होगी। किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी उन लोगों पे नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अब्द है। एंड अल्लाह इज़ ऑल सफिशिएंट, एंड ऑल सफिशिएंट इज़ योर लॉर्ड ऑन द गार्डियन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही उनका वकील है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही उनके गार्डियन है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम चाहते हैं हमें
जिन्नात इन्फ्लुएंस ना करें, तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अब्द बनना चाहिए। एंड बाय अब्द इट मीन्स कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कमांडमेंट्स हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, their limitation is that Allah subhanahu wa ta'ala says that if the entire mankind and the entire jinn they were to produce a single verse like this Quran, they couldn't do so. वो अगर कुरान की तरह कोई भी वर्ड्स प्रोड्यूस करना चाहे मैनकाइंड और जिन्नात, तो वो नहीं कर सकेगी। इवन इफ दे हेल्प वन अनदर, अगर इंसान और जिन मिल के भी कुरान जैसी कोई वर्ड्स प्रोड्यूस करना चाहें तो वो कर सकती हैं? नहीं कर सकते हैं। इससे पता चला कि उनकी इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन भी है। जिस तरह ह्यूमंस की इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन है, जिन्नात की भी क्या है? इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन है। देयर सम थिंग्स दैट दे कैन नॉट डू। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो जिन्नात बिल्कुल नहीं कर सकते इंटेलेक्चुअली भी। द थर्ड इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट शैतान कैन नॉट कम इन माय शेप। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शैतान है वो मेरे शेप में नहीं आ सकता। अच्छा, जो शैतान है उसका जो विस्पर करना है, वो एक तो विस्पर करता है व्हेन वी आर इन कॉन्शियस स्टेट, जिस तरह हम उठे हुए हैं अभी, तो विस्पर करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही मुस्लिम की हदीस है दैट शैतान जो इबलीस है दैट रन्स इन द बॉडी जस्ट लाइक ब्लड। वो वेन्स में ऐसे रन करते हैं जिस तरह ब्लड रन करते हैं, यू नो दिस जस्ट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब आप कहें कि यार ओके लेट मी सी द मूवी, लेट मी गो टू द सिनेमा, लेट मी लुक एट गर्ल्स, कोई बात नहीं, शैतान रन कर, अब क्या कर सकता है बंदा। नहीं, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, क्योंकि ही कैन ओनली विस्पर, ओके, ही कैन ओनली विस्पर टू अ सर्टेन टाइम। इसलिए कहते हैं कि रमज़ान में तो शैतान चेंड हो जाता है। ऑल द जिन्स आर चेंड, ओके, द कुफार जिन्स, द खबीस जिन्स, वो क्या हो जाते हैं? चेंड हो जाते हैं। तो रमज़ान में जो बंदा जिस तरह की एक्टिविटी करे वो उसका नफ्स कर रहा होता है। इसका मतलब है थ्रू आउट द ईयर तो आप मूवी देख रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो इब्लीस को, लेकिन रमज़ान में भी अगर आप मूवी देख रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गाने सुन रहे हो, जो आपने उल्टी पुल्टी चीज़ें करनी है कर रहे हो, तो रमज़ान में इब्लीस का इन्फ्लुएंस नहीं होता या बहुत ज़्यादा कम लिमिटेड हो जाता है। वो क्या कर रहा होता है? सिर्फ विस्पर करता है। तो इसका मतलब है कि रमज़ान में फिर आपका नफ्स ये कर रहा होता है। तो जो कॉन्शियस स्टेट में वो विस्पर करता है इब्लीस, वो सिर्फ विस्पर करता है, लेकिन एक स्टेट उसकी सबकॉन्शियस होती है जो स्लीपिंग की स्टेट होती है। यू कॉल इट अनकॉन्शियसनेस और यू कॉल इट सबकॉन्शियसनेस। तो शैतान का इन्फ्लुएंस हमारी स्लीप में होता है या नहीं होता? होता है। कैसे होता है? ड्रीम्स में हो सकता है। ओके, सो दैट लीड्स टू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के ड्रीम्स 3 तरह के होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देयर आर 3 टाइप ऑफ ड्रीम्स। इसकी क्लासिफिकेशन है रहमानी, नफसानी और शैतानी। ओके, एक काइंड ऑफ ड्रीम होते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आते हैं। दूसरे काइंड ऑफ ड्रीम होते हैं जो हमारा जो अपना नफ्स होता है वही वो ड्रीम जनरेट करता है। जैसा किसी के एग्ज़ाम में उसको ड्रीम में आ रहा है मैं फिज़िक्स में मेरा A स्टार आ रहा है या कल पेपर में ये आएगा। और थर्ड टाइप ऑफ द ड्रीम इज़ फ्रॉम शैतान। और जब ये शैतान आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ही कैन नॉट कम इन माई शेप। शैतान नहीं आ सकता किसी की भी ड्रीम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेप में, नॉट पॉसिबल। तो और जो लोग जादू से अफ्लिक्टेड होते हैं या जिन पे जिन्नात का थोड़ा सा असर होता है, जो ये जो जिन होते हैं या कि बंदे को इस तरह डराते हैं कि इंटेंस फियर करना। एक बंदे को लगता है कि वो हाइट से गिर रहा है। व्हेन आई वाज स्मॉल तो मुझे काफ़ी लगता था कि जनाब, बट आई वाज टू प्रीमेच्योर और समथिंग लाइक दैट टू टेल इट टू एनीवन। मुझे अक्सर लगता था कि मैं बेड पे सोया हुआ हूँ और एकदम मैं हाइट से गिर गया हूँ। अक्सर आपको फीलिंग होती है कि आप बेड से नीचे गिर गए हो या किसी बिल्डिंग से नीचे गिर गए हो या अजीब अजीब तरह के एनिमल्स आना। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट सम ऑफ द वेज जिससे शैतान आपको तंग करता है, बट देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट। Okay, so it whispers to the humans. Okay, now someone asked the question of Ifrit, that Ifrit is a type of a jinn. So we get to know a story of जिन्नात। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफ़ी ज़्यादा बादशाहत दी थी।
एंड जस्ट लाइक एवरी प्रॉफिट, हर प्रॉफिट को एक मेरिकल मिला था, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का मेरिकल क्या था, दैट ही वुड टॉक इन वेरियस लैंग्वेजेस to all the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. He could communicate from anyone, and Allah subhanahu wa ta'ala granted him the kingdom like never before. किसी को उसी तरह की kingdom नहीं मिली जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली. No one has been blessed that sort of a kingdom. तो उसमें there's a story in Surah Al-Naml के तख्त लाना था the queen of Saba. सबा की जो क्वीन थी, शी वॉज इंसिस्टिंग, वो एक पैगन थी और वो अपने ट्राइब को इंसिस्ट करती थी टू वर्शिप समवन अदर देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला तो एक इफ्रीत, एक स्ट्रॉन्ग जिन, उसने कहा कि मैं आपके उठने से पहले, आपके थ्रोन पे उठने से पहले उसका थ्रोन आपको आपके सामने ला दूंगा. बट देयर वाज अनदर जिन जो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. उसने कहा कि आई एम मोर नॉलेजेबल, मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, एंड आई एम मोर ट्रस्टवर्दी, आई कैन ब्रिंग दैट थ्रोन बिफोर द ब्लिंकिंग ऑफ आई. आप इससे पहले कि आई ब्लिंक करें, उससे पहले मैं क्या तख्त लेकर आ जाता हूँ, उसका थ्रोन. और इसी तरह हुआ कि वो थ्रोन ब्लिंकिंग ऑफ एन आई से पहले आ गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बिल्कुल आ गया. तो पता चला कि ये जो चीज़ें हैं, जिनों की जो पावर है, they have their ability and they can come in any human form. अक्सर ये ह्यूमन फॉर्म में आके उन लोगों को डराते हैं जो जब वो रिवेंज लेना चाहें. एक स्टोरी मिलती है हदीस की बुक्स में, दैट देयर वाज अ गार्डियन ऑफ बैतुल माल. बैतुल माल के गार्डियन थे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. ओके, इट्स नरेटेड टू हिम दैट ही सेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, he asked me to give protection of बैतुल माल at night. उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने इस बैतुल माल की प्रोटेक्शन करनी है पूरी रात. तो एक बंदा आया, एक चोर आया बैतुल माल के अंदर कुछ चोरी करने के लिए. तो जब वो चोरी करने के लिए आया तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको पकड़ लिया और फिर कहा कि मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाना चाहता हूँ ताकि वो डिसीजन करेंगे आपके साथ क्या होना चाहिए. उसने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की और उसने कहा कि नहीं, आई एम अ वेरी पुअर मैन, मेरे बच्चों के पास कोई खाना नहीं है, प्लीज़ मुझे लेट मी गो. और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आई लेट हिम गो, मैंने उसको जाने दिया. तो मैंने नेक्स्ट डे ये इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बी अलर्ट, वो दोबारा आएगा. और इसी तरह हुआ. दिस टाइम आई वॉज मोर अलर्ट, मैं ज़्यादा अलर्ट था. लेकिन इसी तरह हुआ कि नेक्स्ट डे भी जब मैं प्रोटेक्शन कर रहा था तो वो दोबारा आया. जब वो दोबारा आया तो मैंने उसको दोबारा पकड़ लिया और वही वाला एपिसोड रिपीट हुई. उसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया दैट आई एम अ वेरी पुअर पर्सन, मुझे उस पर पिटी, आई फेल्ट मर्सीफुल एट हिम. और उसके बाद वो दोबारा चला गया. Then I narrated the same story to the messenger of Allah the next morning. जब मॉर्निंग में मैंने ये स्टोरी नरेट की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उन्होंने कहा कि बी अलर्ट, he'll come again, वो दोबारा आएगा. और थर्ड नाइट भी यही हुआ. थर्ड नाइट भी मैंने उसको पकड़ा, लेकिन इस दफ़ा मैंने उसको कहा कि नहीं, मैंने तो जाने ही नहीं देना, मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके ही जाना है. दिस इज़ इनफ, आई हैव हैड इनफ. ओके, तो उसने क्या कहा कि उसने कहा कि लेट मी गो, आई टेल समथिंग जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी अगेंस्ट शैतान और अगेंस्ट दीज थिंग्स. और वो प्रोटेक्शन क्या थी, दैट यू नीड टू रिसाइट आयतुल कुर्सी. आप आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको प्रोटेक्ट करेगा. अबू हुरैरा ने इस कंडीशन पे उसको छोड़ दिया और नेक्स्ट डे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने ये पूरा मामला बताया उन्हें. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा डिसीवर है, लेकिन जो उसने कहा है वो ट्रुथफुलनेस है. व्हाटएवर ही हैज सेड इज ट्रुथ. और वो डिसीवर कौन था, वो शैतान था. तो पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी कंपेनियन से इब्लीस या जो जिन है या शैतान है वो ह्यूमन फॉर्म में मिलकर आता. और अक्सर ये आके रिवेंज लेते हैं. ये इनका कोई नुकसान हुआ होता है, अनकॉन्शियसली इंसानों ने नुकसान किया होता है, ये लस्ट की वजह से दे कम एंड टेक रिवेंज.
तो अब शैतान इन्फ्लुएंस कैसे करता है? दिस इज अनदर टॉपिक फॉर द नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट. फर्स्ट थिंग इज ही मेक्स यू डू कुफर और शिर्क. सबसे पहला जो काम होता है इब्लीस का, वो कहते हैं कि जो बंदा है ये किसी तरह कुफर कर ले. और इसमें डिफरेंट स्टोरीज मिलती हैं बनी इसराइल की काफ़ी ज़्यादा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा. वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी इज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम बनी इसराइल. उसका नेट रिजल्ट क्या मिलता है? आई एम गोइंग टू स्किप दैट स्टोरी राइट नाउ. लेकिन उसका नेट रिजल्ट क्या मिलता है कि एक बंदा इब्लीस उस बंदे को फंसा देता है, दैट ही मेक्स हिम किल समवन्स सिस्टर. ओके, नेट रिजल्ट क्या होता है कि एक बंदे को वो किसी की बहन का कत्ल करवा देते हैं. जब उसके भाई आते हैं पूछने के लिए कि किसने कत्ल किया, तो कहता है कि मुझे नहीं उस बंदे का पता, मुझे आपकी बहन का नहीं पता. और फिर उसके भाइयों को ड्रीम में पता चलता है कि उनकी जो बहन है वो उस जगह पे बरीड है, उस जगह पे बरीड है. वो जब उधर जाते हैं तो उन्हें अपनी बहन की डेड बॉडी मिलती है. और ये जो बंदा जिसने कत्ल किया होता है और छुपाया होता है, ये जब इसको फांसी होने लगती है तो इब्लीस दोबारा आता है. इब्लीस ने कत्ल करवाया था. इब्लीस दोबारा आता है और वो कहते हैं कि तुम कुफर करो, मैं तुम्हें फांसी से निजात दे दूंगा. और वो कुफर करता है और उस स्टेट पे वो मर जाता है. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट दे मेक यू डू कुफर. या सेकेंडली रिलीजन में इनोवेशन लाना. देखें, इनोवेशन इज समथिंग दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. इनोवेशन का मतलब होता है रिलीजन में कोई नई चीज इन्वेंट करना. फॉर इंस्टेंस, विद माई 100% ऑनेस्टी राइट नाउ, द वेरी सीरियस टॉपिक, हमारे रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा ऐसी इनोवेशंस हो गई हैं जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं. एक बहुत ही कॉमन इनोवेशन जिससे कोई भी डिसएग्री नहीं करता, वो है कि आप श्राइन्स बनाओ, मज़ार बनाओ और उस पर जाके दमाल डालो. ओके, श्राइन्स पे जाके दमाल डालना, नो वन इन दिस रूम विल से दैट दिस इज एन एक्ट ऑफ इबादत. तो कह सकता है कि एक बंदा जो मज़ार पे जाके ढोल के साथ दमाल डाल रहा है वो बहुत ही नेकियां कमा रहे हैं, माशाल्लाह, बड़ा जन्नती है, उसको जन्नतुल फिरदौस मिलेगी. नहीं कह सकता. ओके, नो वन कैन से दैट, राइट और रॉन्ग. ओके, सो इस तरह की इनोवेशंस डालना. एंड अकॉर्डिंग टू मेनी स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इनोवेशन ज़्यादा खतरनाक चीज़ है डिसोबीडियंस है. क्योंकि एक बंदा डिसोबीडियंट होता है, उसको पता होता है कि ये जो काम है ये मैं नाफरमानी करूँ, सम डे इज गोइंग टू रिपेंट. एक बंदे को पता है कि मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मूवीज़ देख रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हूँ, जो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन कभी वो रिपेंट करेगा बिकॉज ही नोज कि ये इस्लाम नहीं है. यू नो, इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आपको पता है कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम. लेकिन इनोवेशन इज मोर बिलीवर्ड टू शैतान, क्योंकि बंदा ये सोच रहा होता है दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ इबादत. वो कहते हैं कि नहीं, ये जो दमाल डाल रहा हूँ ना, इससे बड़ी नेकियां मिलेंगी. ओके, सो वो बंदा कभी रिपेंट नहीं करता बिकॉज दिस इज मोर बिलीवर्ड टू शैतान. सो दीज आर सम ऑफ द कुफार एंड अदर थिंग्स. मेजर और माइनर सेंस, जिस तरह मैजिक, मैजिक जो है वो हक है, इट्स ट्रुथफुलनेस, यानी कि मैजिक इज अ रियलिटी और ईवल आई भी रियलिटी. ईवल आई है कि आपने किसी को देखा, मैंने रईद को देखा और मैंने सोचा कि यार माशाल्लाह बड़ा हैंडसम है, और साथ ही वो बीमार हो गया. या मैंने इसका देखा, इसकी करोला देखी, बिल्कुल नई निकली है, रोड पर आई है, वेरी नाइस सिविक, वेरी ब्यूटीफुल कार, और ज़रा ही मैं आगे जाता हूँ तो उसका एक्सीडेंट हुआ होता है. काफ़ी दफ़ा हुआ है ना. ओके, वी गेट टू नो अबाउट अ कंपेनियन, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपेनियन. व्हाट हैपेंड वाज दैट ही वाज टेकिंग बाथ and he was very very handsome. Okay, and the other companions said that, one of the companions said that, mashallah, you know, such a handsome person he is. And the moment he said it, the moment he looked at him, वो collapse हो गए. वो जो companion है वो collapse हो गए. और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मामला आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी जो ग्लैंस है, that has made this person
इल। तो फिर उसका सोल्यूशन इस्लाम में क्या है कि जिसकी ईवल आई लगी हो, ही नीड्स टू टेक गुस्ल। उसका जो वाटर होता है उससे वो बंदा दूसरा गुस्ल करता है और उसके बाद उसको क्योर मिलता है। दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। द अदर सोल्यूशन इज अस्कार एंड रीडिंग दुआ और रुकिया करना, बिकॉज मेनी टाइम्स यू डोंट नो, बट दिस इज ट्रुथ। Some of physiological diseases, जो you were telling about the dream, so they are some kind of things that are neither identified by a doctor. So like you don't know what is the root cause of a problem. आपको नहीं पता चल रहा कि इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। मेडिकल रिपोर्ट सारी ठीक आ रही हैं, साइकेट्रिस्ट के पास गए, साइकेट्रिस्ट ने कहा आई कांट आइडेंटिफाई एनीथिंग। अब उस केस में हो सकता है कि जिन की पोजीशन हो या जिन आए। एक तो ये कि जो जिनों की पोजीशन है वो रियलिटी है, वो सच है, जिनों की पोजीशन बिल्कुल सच है। कितना कॉमन होता है इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन हमारी जो विलेज कल्चर है उसमें ये होता है कि कोई बंदा किसी को कुछ भी हो जाए तो कहते हैं जिन चिपट गया। ओके, गांव में अक्सर होता है, तो बहुत ज़्यादा टैबू बन जाता है सोसाइटीज़ में कि कामवालियाँ कहती हैं जिन चिमट गए, यानी कि किसी बंदे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ तो जिन चिमड़ा हुआ है, या किसी बंदे का हाई बीपी हुआ तो जिन चिमड़ा हुआ है। इस तरह नहीं होता। ओके, या किसी बंदे को हार्ट अटैक हुआ तो उसको किसी पीर के पास ले गए कि जनाब जिनों का इलाज कराओ, इसका इस तरह नहीं होता। अगर कोई मेडिकल रीज़न नहीं है या अगर कोई साइकी नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द साइकी, एक साइकेट्रिस्ट कहते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई मेडिकल रीजन नहीं है, तो फिर देयर आर चांसेस कि जिन चिमड़ा हुआ। या समटाइम्स द जिन्नात हैव एन इन्फ्लुएंस कि वो बंदे के सर्कमस्टांसेस चेंज करते हैं और उस पर इतना प्रेशर डालें कि वो बंदा बीमार हो जाए। ओके, लाइक बेबरकती होना। अगर आप बिल्कुल अस्कार नहीं करते, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत ज़्यादा दूर हो, देयर कुड बी सम इन्फ्लुएंस ऑफ जिन्नात कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाए और या आपके ऊपर फाइनेंशियल क्रंच आ जाए या घर वालों को मैनेज ना करना है। ओके, सम ऑफ दैट इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से आप इंटेंस फेयर में आ जाओ या डिप्रेशन में आ जाओ, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। या समटाइम्स देयर आर सम केसेस इन व्हिच अ मदर कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। ओके, some cases like what the crux of the matter is that sometimes we cannot if I have to summarize it, हम ये नहीं कह सकते कि जिनों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। ओके, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि हर तरह के सिनेरियो में जिन ही इन्वॉल्व है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज यू गो टू द बेस्ट डॉक्टर, यू गो टू द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट। अगर वो दोनों नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, so the third thing is that there could be an influence of jinn. Okay, this is the reality. Intense fear, physical sickness and hallucinations. Hallucinations are कि आपको वो वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं जो प्रेजेंट ही ना हो। एक और स्टूडेंट है, वो कहते हैं, द सेम गाय, द समनाबाद गाय, वो कहते हैं कि मैं सोया होता हूँ अपने बेडरूम में बिल्कुल, और मेरी अम्मी कहती है कि मुझे शीशे से हमदा नज़र आ रही है। Okay, I am sleeping in my bedroom. I'm not anywhere. I'm just sleeping. लेकिन मेरी अम्मी सुबह कहती है कि हमजा तुम 2 बजे क्या कह रहे थे? मैंने कहा मे बी यू आर जस्ट स्लीप वॉकिंग। ऐसे भी हो सकता है आप स्लीप वॉकिंग कर रहे हो, लेकिन हेलुसिनेशंस, सीइंग समथिंग आपको नहीं नज़र आ रहा और उसके बाद लोगों को ये वाली चीज़ें सारी नज़र आती है। ओके, दिस इज ऑल्सो बाय शयातीन। कुरान इसका एविडेंस इस तरह देता है कि हेलुसिनेशन समथिंग दैट इज नॉट देयर बट यू आर सीइंग इट फ्रॉम द इवेंट ऑफ मूसा अलैहि सलाम। आपने मूसा अलैहि सलाम का किस्सा सुना होगा कि मूसा अलैहि सलाम और जो जादूगर थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट किया, और फिर जब उन्होंने अपनी फेंकी चीज़ें तो मूसा अलैहि सलाम को क्या नज़र आया कि क्या है ये स्नेक्स हैं। अब वो रियल में स्नेक्स थे? नहीं थे, वो रियल में स्नेक्स नहीं थे। तो इट वॉज मेड टू अपेयर कि ये क्या है, स्नेक्स हैं, हेलुसिनेशंस। ओके, सो दे वर द सेम थिंग। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहि सलाम को कहा कि आप अपना असा फेंको, और वो उन सारों को क्या हो गया, खा लिया। तो मैजिशियंस को भी पता चल गया दिस इज नॉट मैजिक,
दिस इज ऑफ द सेम यॉन्ड्रा एज मैजिक, लेकिन ये मैजिक नहीं है क्योंकि मैजिक की लिमिटेशन है और मूसा अलैहिस्सलाम का जो मिरेकल है वो इस लिमिटेशन से ओवर एंड अबव है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इमोरलिटी लाइक पोर्नोग्राफी, म्यूजिक इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों से शैतान क्या करने की कोशिश करता है? इन्फ्लुएंस करता है. वन ऑफ द साइन ऑफ अ पर्सन हैविंग दिस मैजिक इज दैट वेरेवर जब कुरान की तिलावत हो रही है उसके सामने तो उसको कुछ होना शुरू हो जाता है. ओके, मे बी ही इज फीलिंग स्लीपी, मे बी ही जस्ट वांट्स टू टेक इट ऑफ. स्कॉलर टोल्ड मी एन इवेंट कि एक बंदा आया मेरे पास बिल्कुल अजीबोगरीब किस्म का, और मैंने जब कुरान की तिलावत शुरू की तो वो एकदम रिएक्शनरी हो गया. उसको ना कुछ होना शुरू हो गया. तो इसी तरह ये जब जिन पोजेस्ड होते हैं इसकी एक रियलिटी है और इसके डिफरेंट साइंस होते हैं कि एक बंदा फॉरेन लैंग्वेजेस बोल रहा हो या किसी बंदे में ऐसी स्ट्रेंथ आ जाए जो उसमें नेचुरली ना हो, एक स्ट्रेंथ ना हो. और जो पोजीशन है जिनों की, इबलीस की, बाकी जिनों की, वो भी एक रियलिटी है. हमें एक इवेंट मिलता है कि सूरत अल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो लोग रिबा कंज्यूम करें, वर्स नंबर 275, जो लोग रिबा कंज्यूम करते हैं वो क़यामत के दिन उस तरह उठाए जाएंगे जिस तरह समवन पोजेस्ड विद शैतान, जिस तरह शैतान को किसी जिन ने उसको पोजेस किया हो. ओके, रिबा होते हैं इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट, नॉट द इंग्लिश इंटरेस्ट, द बैंकिंग इंटरेस्ट. ओके, और वो कहेंगे क्योंकि ये इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा होगा दैट रिबा इज द सेम एज ट्रेड, रिबा भी वैसे ही है जैसा ट्रेड है. ओके, विद रिगार्ड्स टू दिस थिंग्स, immorality, pornography, music industry, vain activities in today's society, this is going to be workshop number 2, that is going to be next week inshallah. But what are the things, how can we safeguard ourselves from these जिन्नात? हमें कैसे safeguard करने अपने आप को इन जिन्नात से? From the correct अकीदा. अब बेसिकली सारा मसला ये है कि हमारे जो अकायद हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, वो बहुत ज़्यादा करप्टेड है. उसकी रीज़न ये है कि इस्लाम का ज़्यादातर नॉलेज लेते हैं फेसबुक से या ड्रामों से. ओके, या हम मूवी से लेते हैं. मैंने ये पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि जब हम यहाँ से सारा नॉलेज लेते हैं और हम ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स नहीं खोलते या मिथ्स लोगों की सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया. हमने मिथ सुन ली है कि जब तक एक बंदा दफनाया नहीं जाता उसकी रूह तड़पती रहती है. कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी ड्राइंग रूम में जा रही है, कभी वो मूवीज़ में देखा हुआ है कि जनाब एक बंदा फौत हो गया और वो अपने घर वालों को देख रहा है, ये सारे रो रहे हैं और उसकी डेड बॉडी सामने पड़ी है और वो इस तरह वॉक कर रहा है, कभी हंस रहा है, कभी बोल रहे हैं उनके साथ कि यार ना रो, कोई बात नहीं, हम ओके, ठीक है. या पूरी पूरी मूवीज़ बनी हुई है कि मरने के बाद एक और नेक्स्ट वर्ल्ड है. तो फिर ये सारी जो चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, उससे इन्फ्लुएंस होती हैं. अकीदा सही नहीं तो ये लीड करता है एक ऐसी इंडस्ट्री को जो पामिस्ट इंडस्ट्री होती है. आई वॉज ऑन जर्नी और बहुत अच्छे होटल्स, एप्पल कॉन्टिनेंटल, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक द नेम ओपनली बिकॉज इट्स अ रियलिटी. Pearl Continental Hotel, PC Bourbon, has given a special place to someone who checks your hand, who charges money, and who tells your future. Okay, it's happening everywhere. So this is the reality that he's a person sitting over there. जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हुआ है कि फ्यूचर का इल्म किसी को भी नहीं है. No one knows फ्यूचर का इल्म किसी को भी नहीं है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा फ्यूचर का इल्म किसी को भी नहीं था. इवन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी उतना फ्यूचर का इल्म था जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया हुआ था. लाइक वेरी फेमस हदीस, द हदीस ऑफ जिब्राइल. वन ऑफ द क्वेश्चन वाज दैट व्हेन इज द आवर गोइंग टू कम, क़यामत कब आएगी. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दैट द क्वेश्चनर, द वन हु इज क्वेश्चनिंग एंड द वन हु इज बीइंग क्वेश्चनड, जो पूछने वाला है और जो बताने वाला है, जिससे सवाल पूछा गया, दोनों को सेम नॉलेज है. इसका मतलब दोनों को नॉलेज नहीं था. लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जाके अपना हैंड दिखाते हैं लोगों को और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, ये शाम ने फॉर इंस्टेंस डॉक्टर बनना है, इज इन ओ लेवल्स, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, और इसने जाके अपना हाथ दिखा दिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा.
और उसने कह दिया कि नहीं आप तो डॉक्टर नहीं बनेंगे, आप तो एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। ओके, अब ये पूरी जिंदगी इसका ओ लेवल्स इसका ए लेवल्स ये सोचने में खराब हो गया कि यार जब ग्रेड्स ही नहीं आने, डॉक्टर ही नहीं बनना, तो क्या फायदा पढ़ने का। यू स्टार्ट बिलीविंग इट। और इसके ऊपर काफी ज्यादा चीजें, इवन इन द मॉडर्न साइंस, like a nose of a family, sometimes doctors say that the baby that is going to get birth is not going to be a normal baby. Doctors तो predictions करते हैं ना probability के ऊपर, लेकिन कई दफा उनकी predictions भी wrong हो जाती हैं। The gender predictions, their predictions are also wrong. तो वो तो पूरा medical equipment use कर रहे हैं, पूरा अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, और उसके बाद एक एनालॉजी दे रहे हैं। और एक बंदा जिसके पास इंटेंजिबल नॉलेज है, पता ही नहीं कि बस, और काफ़ी फेमस कोट्स लगे होते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी क्या किस्मत नहीं होती। अगर किसी बंदे के हाथ ही कट गए हैं तो अब क्या मतलब कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसका भी तो फ्यूचर है। सो आप अपना अकीदा बिल्कुल ठीक रखें। और ये लीड करते हैं कि जब भी किसी के इलाज के लिए जाने, किसी राखी के पास जाना है बताने के लिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमें, तो हमने उस बंदे के पास जाना है जिसकी अपनी लाइफ कुरान और सुन्नत के ऊपर हो। ये नहीं कि किसी भी बंदे के पास चले जाना है बिकॉज वो टीवी पर आता है या बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फेमस है। पिछले दिनों बहुत एक मामू थे, पता नहीं है वो किधर हैं, लेकिन 5-6 साल वो टीवी पे रहे और वो हर तरह की प्रिडिक्शंस देते थे। सो ओके, डेली अस्कार करना और कुरान पढ़ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अस्कार इज लाइक अ शील्ड। Azkar is so important. Just a small story to remember. There were 2 scholars who were going, and उनमें से एक ने दूसरे का ट्रीटमेंट किया था। दोनों इकट्ठे जा रहे थे। एक ने किसी बंदे का ट्रीटमेंट किया था जादू के लिए, जिन निकाला था कोई। तो जब जा रहा था तो पता चला कि जब वो जा रहे थे तो एक स्कॉलर को आवाज़ आई कि उनका जो कंपेनियन था उसको पीछे से किसी ने आके हिट किया, चपाख, ठीक है, कमर पे, और वो उड़ के नीचे गिरा। तो जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि ये एक ना जिन है। देखा तो नहीं, लेकिन उन्हें पता चला कि जिन है। अच्छा, तो उसने कम्युनिकेट किया उस जिन से कि आपने मुझे क्यों नहीं मारा, जिस तरह चपाक इनको लगी है तो आपको क्यों नहीं लगी। तो उस जिन ने कहा बिकॉज वो समथिंग, कुछ ऐसा था जो आपको गार्ड कर रहा था। तो स्कॉलर ने कहा मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि क्या गार्ड कर रहा था, तो मैंने एक अस्कार किया था। अस्कार क्या है कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये मैंने 3 दफ़ा किया था और ये मुझको गार्ड कर रहा था। ठीक है, हाँ, शाम तक प्रोटेक्शन होती है, शाम को पढ़ो तो सुबह तक। ओके, सो दिस वाज दिस अस्कार। लेकिन जब आप ये अस्कार नहीं करोगे, जब आप इम्प्योरिटी में रहोगे, ईवल डीड्स करोगे, वॉशरूम जाके अपना सारा टाइम स्पेंड करोगे, म्यूजिक सुनोगे, दिन रात आपके दिमाग में पबजी और फोर्टनाइट चल रही होगी, और फ्रेंड्स के सिनेमा जाना और इंटरनेट पे चैटिंग करना, तो फिर कैसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी? आपको प्रोटेक्शन तो नहीं मिलेगी, प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती, क्योंकि आप लोग अपनी एक्टिविटीज में हो। और अस्कार बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग, इट्स लाइक अ लॉक। ओके, इट्स लाइक योर प्रोटेक्शन, लाइक योर इम्यून सिस्टम। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो फिर डिजीजेस ज़्यादा आती है। एंड देन गिव एज मच चैरिटी एज यू कैन। बहुत ज़्यादा आप चैरिटी करें। व्हाटएवर यू डू, try to remember that Shaitan influences us. And in the next workshop, we are going to discuss how influences us through the modern world. Okay, in today's society, वो कैसे influence करता है, in which we are going to talk about music industry, about the normal immoral behavior that we are adopting these days, and about alcohol, shisha, this vape, okay, I don't know what is called, and about drug addiction and everything. Okay, so there's a lot of things that we are going to discuss. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.